Okay, in Lektion 1, heute lernen wir Verbstruktur, means Verb Structure. Was ist ein Verb? Zuerst, सबसे पहले sollen wir das wissen, हमें ये पता होना चाहिए कि was ist ein Verb, एक Verb क्या होता है und was zeigt ein Verb, एक Verb क्या show करता है. Einfach, बहुत आसान. Verb ist eine Aktion. Aktion, Aktion means जी। action. Verbs are action words. Verbs क्या होते हैं? Action word. किसी भी काम को express करते हैं जो हो रहा है, किया जा रहा है. They describes what someone is doing. कौन क्या कर रहा है और what happens कि क्या हो रहा है. Verben beschreiben was man macht. Verbs describe करते हैं कि कोई भी इंसान क्या कर रहा है या क्या हो रहा है. Und Verben sind Aktionen. Verbs क्या होते हैं? Actions होते हैं. Aktionen. Haben wir eben gesehen, हमने भी देखा कि im Deutschen haben wir in einem Satz drei Elementen. We have three elements in a sentence. Auf dieser Seite, Slide के ऊपर, haben wir einen Satz. Und dieser Satz hat drei Elementen. The sentence has three elements. Zum Beispiel wir. Wir spielen Fußball. In diesem Satz ist Sentence में was ist wir? Wir क्या है? Wir ist ein Subjekt यानी Subject. तो भी In diesem Satz ist Sentence में spielen. Spielen ist ein Verb. Spielen bedeutet to play, खेलना. Okay? Und am Ende, at the end, Fußball. Fußball ist ein Objekt. Football क्या है? एक Object है. So ein Satzbau besteht aus drei Elementen. A sentence structure consists of three elements. जर्मन जबान में जो sentence structure है वो सिर्फ और सिर्फ तीन elements के ऊपर बेस करता है. Subject, Verb und Objekt. और क्या होता है? एक Object होता है. और याद रखिएगा कि das Verb steht immer auf Position 2. The verb always comes on second position. Verb sentence में मौजूद हमेशा second position को acquire करता है. Wir spielen Fußball. हम फुटबॉल खेल रहे हैं. Wir spielen Fußball. हम फुटबॉल खेलते हैं. Okay? Beide sind richtig. दोनों ठीक हैं. Aber im Deutschen, German में, gibt es viele Verben. We have a lot of verbs. Wir haben viele Verben. We have a lot of verbs. Zum Beispiel, uh, common. Pronounce with me. Common. Was bedeutet common? हम कॉमन Common means to come. टू कम Gehen. Gehen means to go. यानी जाना. गेहन Spielen. Spielen means to play. खेलना खेलना. स्पीलन Und essen. Essen means to खाना eat. यानी खाना. Haben wir ऐसे viele Verben? We have a lot of verbs. Wir haben viele Aktionen. We have a lot of actions in German. Und Verben sind Aktionen. Verbs क्या होते हैं? Actions होते हैं. वो काम जो हम करते हैं. हम सोते हैं. Verb. हम खाते हैं. Verb. पीते हैं. Verb. काम करते हैं. जाते हैं. आते हैं. खेलते हैं. भागते हैं. Alle Aktionen sind Verben. All actions are the verbs. सारे actions जो हम करते हैं वो क्या होते हैं? Verbs. Aber was sind Infinitivverben? Infinitive verbs क्या होते हैं? Was sind Infinitiv? Wer kann mir sagen, कौन बताना चाहेगा? Hm? Was bedeutet Infinitiv? Das habe ich schon gesagt, ne? Original form for Hm. कौन बोल रहा है? If you would like to answer, raise your hand. हाँ, okay, Ali Nawaz. सर ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब्स Sehr gut. Infinitivverben. Infinitive verbs means
ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब की असली हालत या उसकी ओरिजिनल फॉर्म को कहा जाता है इन्फिनेटिव वर्ब. Finden Sie alle Verben in Wörterbuch im Infinitiv. Wörterbuch, Wörter, Wort कहा जाता है word को. Wörter means words. Buch, Buch कहा जाता है किताब को यानी बुक को. Was ist Wörterbuch? Wörterbuch. Wörterbuch means dictionary. Wörterbuch डिक्शनरी को कहा जाता है. जब भी Oh, डिक्शनरी में आपको कोई वर्ब लिखा हुआ दिखे तो वो हमेशा अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा होता है. Zum Beispiel essen, spielen, gehen, kommen. Diese Verben sind Infinitiv. ये verbs कहलाते हैं इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का क्या मतलब है? इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये किसी भी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है. Und in German, im Deutschen, infinitive verbs usually end with an या तो infinitive verbs की ending an के साथ होती है. Oder nur auf n या सिर्फ किसके साथ होती है? n के साथ. Zum Beispiel kommen, gehen, spielen, essen. जब भी कोई वर्ब आपको लिखा हुआ दिखे और उस वर्ब की एंडिंग क्या हो, en या फिर n, das bedeutet इसका मतलब है कि dieses Verb ist Infinitiv Verb. वो वर्ब क्या है? एक infinitive verb है. Infinitive verb means वो उस वर्ब की ओरिजिनल original फॉर्म है. form. ओरिजिनल फॉर्म है. Sehr gut. Aber, लेकिन, zum Beispiel haben wir ein Verb lernen. Ein Verb lernen. Was bedeutet lernen? Lernen का क्या मतलब है? Lernen means to To learn, learn. सीखना. सीखना. To learn, सीखना. Ich lerne Deutsch. मैं जर्मन सीखता हूँ. Du lernst Deutsch. तुम जर्मन सीखते हो. Sie lernt Deutsch. वो जर्मन सीखती है. Lernen. Lernen ist ein Infinitiv. Lernen क्या है? Infinitive. infinitive. The original form of the verb. किसी भी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म. क्यों? कैसे पता चला आपको कि लेनिन इन्फिनेटिव है? Sir, End पे en. en. एंड में ईएन. Sehr gut. Aber, लेकिन, wenn wir ein Verb in einem Satz benutzen, when we use the verb in a sentence, जब भी हम किसी वर्ब को किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं, then enden wir das Verb. We change the verb. We change the ending of the verb. हम वर्ब की एंडिंग को चेंज कर देते हैं. उस वर्ब को उसकी असली हालत में या ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते कभी भी. We end this verb. We change the verb. We change the ending of the verb. हम उस वर्ब की एंडिंग को चेंज कर देते हैं. According to the different subjects. Subjects के हिसाब से. ये जो एंडिंग होती है ये सब्जेक्ट्स के हिसाब से वेरी करती है. इश के साथ कुछ अलग एंडिंग होती है. डू के साथ कुछ अलग एंडिंग होती है. हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग एंडिंग्स होती हैं. Und dieser Prozess heißt Verbkonjugation. इस प्रोसेस को कहा जाता है verb conjugation. Pronounce with me, verb Verb conjugation. conjugation. Verb conjugation. Wenn ich frage, अगर मैं आपसे पूछूं कि what is verb conjugation? Verb conjugation क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? The process Changing the of ending of verb. changing the ending of the verb According to the subject. according to the subject. Subject के हिसाब से verb की ending को change किया जाता है. Wenn wir das Verb in einem Satz benutzen. When we use the verb in our sentence, जब भी हम उस verb को अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो उस process को कहा जाता है verb conjugation. Wir konjugieren das Verb. We conjugate the verb.
Verstehen Sie? Alles klar? Yes, sir. इन्फिनिटिव समझ आया सबके क्या होता है, वर्ब की कॉन्जुगेशन क्या होती है? ओके, Yes, sir. डू यू Yes. नो, क्या आप जानते हैं we do conjugate the verbs also in Urdu? वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है, वर्ब की एंडिंग को चेंज करने का जो अमल है, das machen wir auch auf Urdu oder Hindi. ये काम तो हम उर्दू और हिंदी में भी करते हैं. Zum Beispiel, for example, मैं जर्मन सीखता हूँ, तुम जर्मन सीखते हो, वो जर्मन सीखती है. We change the ending of the verb also in Urdu. उर्दू में भी तो हम वर्ब की एंडिंग को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से. मैं के साथ अलग एंडिंग है, तुम के साथ अलग एंडिंग है, उसके साथ अलग एंडिंग है. तो अगर जर्मन जबान में भी वर्ब की एंडिंग को चेंज किया जाए तो इसमें क्या मुश्किल है? ये कोई नई बात तो नहीं है ना? क्ला. Yes, sir. जय गुड. दूसरी जबान सबको मुश्किल लगती है, अपनी जबान कितनी मुश्किल है ये नहीं जानते सब. जय गुड. Ich lerne Deutsch. मैं जर्मन सीखता हूँ. Du lernst Deutsch. तुम जर्मन सीखते हो. Sie lernt Deutsch. वो जर्मन सीखती है. Und heute lernen wir genau. आज इसी को देखेंगे कि wie viele Verben haben wir im Deutschen. जर्मन में कितनी तरह के verbs होते हैं und wie man das Verb konjugiert. कैसे किसी भी वर्ब को conjugate किया जाता है. Verstehen Sie? Klar? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, फिजा, sir. निहाल, Yes, अली, sir. अली नवाज, दुआ जहरा, जवेरिया, Yes, sir. यासिर. वीवो से भी कोई आया हुआ है, प्लीज एंटर द सेशन विद योर फुल नेम. अपने फुल नेम से सेशन को ज्वाइन किया करे ताकि आपको पॉइंट आउट करने में आसानी हो. हाँ, राव मोहम्मद इब्राहिम, नशिद, हमजा, दानियाल, अलस्कला, मिस नुसरत, अहमद. ओके, जय गुड, जय गुड. डन. गेहन विया वाइटा, आगे चलते हैं. हाँ, राव इब्राहिम, हाजुन अफ, आगे कोई क्वेश्चन? सर मुझे बस ये पूछना है कि जैसे वर्ब कॉन्जुगेशन होती है जिसके अंदर हम वर्ब की एंडिंग को हम चेंज करते हैं और इन्फिनेटिव आपने बताया मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया तो इन्फिनेटिव बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब. ओरिजिनल फॉर्म होती है बिल्कुल, थैंक यू. इन्फिनेटिव ओरिजिनल फॉर्म. ओके ओके थैंक यू सर. इन्फिनेटिव ओरिजिनल फॉर्म. Klar, das haben wir gerade gesehen. अभी हमने देखा बिल्कुल. Infinitive, original form. Okay, sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Verbkonjugation, Verb Conjugation. Auf dieser Seite, Slide के ऊपर haben wir ein Verb, एक Verb है und das heißt kommen. इसका क्या मतलब है? Kommen. Kommen bedeutet to come यानी आना. Common. Common ist Infinitiv oder conjugated? ये infinitive है या conjugated है? Infinitive. 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 इन्फिनेटिव. जय गुड. इन्फिनेटिव क्यों, कैसे पहचाना आपने कि इन्फिनेटिव है? EN. ENF. जय गुड. इन्फिनेटिव ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब की असली हालत. बट अब वर्ब चेंज देयर फॉर्म. वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज करता है टू मैच द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से अपने आप को मैच करने के लिए. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेशन. कॉमन मीन्स आना. मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग. Pronounce with me. Ich komme. Ich Ich komme. komme. Ich Ich komme. komme. Ich Ich komme. komme. Du kommst. Du Kommst. kommst. Du kommst. We change the ending. फिलहाल जो common है उसके साथ जो ending है वो क्या है? an. N. लेकिन when we use this verb in a sentence, जब भी हम इस verb को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, wenn wir das Verb in einem Satz benutzen, wir ändern das Verb. हम verb को change कर देंगे. ändern. Pronounce with me. ändern. ändern And it. means And Handle means to change. तब्दील कर देना. We change the verb. We change the ending of the verb. हम verb की ending को change कर देंगे. और याद रखिएगा कि mit ish, ish के साथ
kommt immer ए। इश के साथ जो वर्ब की एंडिंग होती है वो हमेशा क्या होती है? ई। E. हमेशा, हमेशा, हर वर्ब के साथ ये रूल हर वर्ब पे अप्लाई होगा। जर्मन में जितने भी वर्ब्स हैं, ich komme, du kommst, du kommst, du kommt immer mit st। du के साथ जो वर्ब लगेगा उस वर्ब की एंडिंग हमेशा क्या रहेगी? हमेशा S2. st। हमेशा। du kommst, ich komme, इसको याद कर लें। मैं आ रहा हूँ, ich komme, तुम आ रहे हो, du It's kommst, Comst. हम आ रहे हैं, हम, We are common. wir kommen, wir kommen। Okay. wir के साथ जब भी कोई एंडिंग होगी वर्ब की वो हमेशा क्या होगी? Indefinite. an। EN. इन्फिनेटिव की AN. तरह। इन्फिनेटिव नहीं Yeah. है ये, इन्फिनेटिव नहीं है, इन्फिनेटिव की तरह। अब इसका ये मतलब नहीं समझिएगा आप कि विया के साथ तो हम इन्फिनेटिव भी लगा देंगे उठा के। इन्फिनेटिव नहीं है ये, लेकिन ये वर्ब इन्फिनेटिव की तरह ही होता है। 99% केसेस में ये इन्फिनेटिव की तरह ही दिखता है आपको। ओके, wir kommen, हम आ रहे हैं। Ali Farouk hat geschrieben, was ist der Unterschied zwischen ersetzen und ändern? Ändern means to change. Ändern means to change, Ali Farouk. Und ersetzen, ersetzen means to replace. Replace कर देना। एक चीज से दूसरी चीज को तब्दील कर देना। पहले वाली चीज को हटा देना, उसकी जगह कोई दूसरी चीज ले आना। ओके, sehr Okay, gut। sir. Thank Zum Beispiel Pronomen. Pronomen ersetzen Nomen. Pronoun replace the noun। pronoun नाउन को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है आकर, उसको एजेक्शन कहते हैं। क्ला, ओके। you. Okay. इश कॉमे, मैं आ रहा हूँ, du kommst, तुम आ रहे हो, wir kommen, हमारे. हम आ रहे हैं। Dann er Yes, sie sir. es, er sie es। Was bedeutet er sie es? Er sie es का क्या मतलब है? He, she, it, Sehr gut, he, she, she, it, it. sehr gut। Oder eine Singular-Name, कोई सिंगुलर नेम भी हो सकता है इसकी जगह, उस पे भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा। Pronounce with me, kommt, kommt। Calm. Count. Third person always comes with थे। हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, हमेशा वर्ब की एंडिंग में क्या होगा? थे। T. ही इज कमिंग, वो आ रहा है। Er kommt, she is coming, वो आ रही है। Sie Sie kommt. kommt, Sie kommt. इब्राहिम is coming, इब्राहिम आ रहा है। Ibrahim Ibrahim kommt. इब्राहिम kommt. kommt, दानियाल is coming, दानियाल Daniel kommt। kommt. Klar, Yes, sir. Yes, sehr sir. gut। Dann sie, ये जो जी है ये यू वाला है। You. यू फॉर्मल, याद आया? यू फॉर्मल। Mhm. आप आ रहे हैं। जी कॉमन, जी कॉमन, जी कॉमन। क्ला, आप आ रहे हैं। जी कॉमन, याद है? woher kommen जी, आप कहाँ से आए हैं? ich komme aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ओके, ich komme, du kommst, sie kommen। तो जी के साथ भी जो एंडिंग है वर्ब की वो क्या होगी? हमेशा an। देन इहा, was ist इहा? इहा क्या है? तुम लोग। इहा मीन्स तुम लोग। इहा kommt, प्रोनाउंस में इहा kommt। Ihr kommt. इहा के साथ भी एंडिंग हमेशा क्या रहेगी? थे। इहा थे। kommt, तुम लोग आ रहे हो। इहा kommt, तुम लोग आ रहे हो। क्ला, यहाँ तक समझ आया सबके?
very good. Yes, sir. दानियाल आ रहा है. दानियाल. Daniel Daniel Compt. Compt. दानियाल और हमजा आ रहे हैं. common Common. Daniel and Hamza हमजा. Common. Common. Plural. प्लूरल में भी जो एंडिंग है वो हमेशा क्या होगी? ए एन. Ian प्लूरल की एंडिंग भी ए एन होगी. क्लास शाउन में अगला इसको अभी देखते हैं आगे चलकर. सो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा. फरदीन जी, क्ला, अहमद यूसुफ, जवेरिया, जी सर Yes, sir. राव इब्राहिम और Yes, sir. वीवो. वीवो को क्लियर है सब. ओके, नशीद, हमजा, दानियाल, अली नवाज, यासिर. Yes, sir. Alles Yes, klar, sir. sir. ओके, sehr gut. Dann im Deutschen, German में haben wir zwei Verben. We have two verbs, two types of verbs. दो तरह के verbs होते हैं जर्मन में. regelmäßige Verben. regelmäßige Verben means regular verbs. Und unregelmäßige Verben. unregelmäßige means irregular verbs. We have two main types of verbs. दो तरह की types होती है, दो तरह के verbs होते हैं. regelmäßige und unregelmäßige. Regular verbs or irregular verbs. Aber was ist der Unterschied zwischen beide? इन दोनों में फर्क क्या है? Das schauen wir gleich. इसको अभी देखते हैं आगे चलकर. Zuerst, सबसे पहले schauen wir regelmäßige Verben. सबसे पहले हम देखते हैं कि regelmäßige Verben यानी regular verbs क्या होते हैं. Zum Beispiel lernen. Was bedeutet lernen? Lernen means to learn, सीखना, to learn. सीखना. Student. Was sind regelmäßige Verben? Regular verbs क्या होते हैं? Regular verbs follow a consistent pattern in conjugation. When we conjugate the verb, जब हम verb को conjugate करते हैं, the stem of the verb remains the same. Verb की जो stem है वो same रहती है. Zum Beispiel auf dieser Seite haben wir ein Verb und das heißt lernen. ये verb क्या है? lernen. Lernen means to learn, सीखना. Is the site infinitive or a conjugated verb? ये infinitive है या conjugated verb है? Infinitive. Infinitive, ganz Infinitive. einfach. Und ein Verb hat zwei Teile. Ein Verb hat zwei Teile. A verb has two parts. एक verb के दो parts होते हैं. Verb Endung. Verb Endung means verb Verb ending. ending. उस verb की ending. Und das ist Verb Stamm. Verb Stamm means verb stem. किसी भी verb की stem यानी उसकी जड़. Haben wir zwei Teile in einem Verb. एक verb में दो parts होते हैं. एक तो उस verb की stem होती है. इस verb की stem क्या है? Lernen. और Lernen. उस verb की ending होती है. Ending क्या है? an. An. फर्स्टीन जी, यहाँ तक समझ आया सबके फिलहाल? Yes, sir. ओके. Yes, sir. But लेकिन when we conjugate the verb, जब हम उस verb को conjugate करते हैं, when wir dieses Verb in einem Satz benutzen, when we use this verb in a sentence, जब भी हम उस verb को अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, then we change the ending of the verb, तो हम उस verb की ending को change कर देते हैं. इस verb की ending को change कर दिया जाता है. Zum Beispiel mit ich के साथ क्या आती है ending? A. Du. Yes. Du के साथ क्या आता है? S. थे. ST. याद आया? Yes, sir. Ich lerne. मैं सीखता हूँ. Du lernst. तुम सीखते हो. Wir lernen. An. याद आया? Er lernt. So when we use the verb in a sentence, जब भी हम किसी verb को अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं,
वी चेंज द एंडिंग ऑफ द वर्ब, हम उस वर्ब की एंडिंग को चेंज कर देते हैं. एंडिंग चेंज, एंडिंग चेंज. बट लेकिन Verbstamm bleibt gleich. The verb stem will remain the same. Remain the same. जो verb की stem है वो same रहती है. Wir ändern das Verbstamm nicht. हम verb की stem को change नहीं करते. We don't change the verb stem. उस verb की stem को नहीं छेड़ा जाता. Verb की stem same रहती है. हर verb के साथ, हर subject के साथ. सिर्फ change क्या होता है? Ending. उस verb की ending, सिर्फ ending change होती है. With different subjects, subjects के हिसाब से. And these types of verbs are called regular verbs. इन verbs को क्या कहा जाता है? Regular verbs. उन regelmäßige Verben यानी regular verbs. Here state यहाँ लिखा हुआ है. The stem of the verb remains the same when we conjugate the verb. जब हम उस verb को conjugate करते हैं तो उसकी जो verb stem है वो same रहती है हर subject के साथ, हर subject के साथ. चाहे वो इश हो या du हो, sie हो, wir, er, sie, es, इहा, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की स्टेम नहीं चेंज होगी. सिर्फ क्या चेंज होगा? उस वर्ब की एंडिंग, सिर्फ एंडिंग Ending. चेंज सर कैन यू रिपीट द सर ये रिपीट कर देंगे आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको रेगुलर वर्ब्स को होगी. किसको? रेगुलर वर्ब्स को regelmäßige Verben. Schreibe ich hier ganz रेगुलर oben, मैं ऊपर लिख देता हूँ. Pronounce with me. Regelmäßig. रेगल Mäßige. मिसिग मिसिग Mäßige, simple. Regelmäßige Verben. ओके Regelmäßige Verben means regular verbs. थैंक यू आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. Klar, यस सर sehr gut. Dann, sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Zum Beispiel, auf dieser Seite haben wir auch ein regelmäßige Verb. एक और regular verb है und das heißt lernen. उस verb का मतलब क्या है? Was bedeutet dieses Verb? Lernen means to learn. सीखना. Aber wenn wir dieses Verb in einem Satz benutzen, when we use this verb in a sentence, then we change the ending of the verb. हम उस verb की ending को change कर देंगे. इस ending को change कर दिया जाएगा. Verb की जो stem है इसको भी change किया जाएगा ना? इसको भी change किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा. नहीं क्यों किया नहीं जाएगा किया जाएगा? सर. ये regelmäßige. Sehr gut. Weil diese Verben regelmäßige Verben sind. क्योंकि ये verbs क्या हैं? Regular verbs. और regular Regular. verbs का rule है कि उन verbs की stem को नहीं छेड़ा जाता. We change only the ending of the verb. Klar? Okay. मैं जर्मन सीखता हूँ. Ich lerne Lerne. Deutsch. Ich lerne Deutsch. मैं जर्मन सीखता हूँ या मैं जर्मन सीख रहा हूँ. Ich lerne Deutsch. तुम जर्मन सीखते हो. Du Du lernst. lernst Deutsch. हम जर्मन सीखते हैं. हम wir Wir lernen. Lernen. lernen Deutsch. हम जर्मन सीखते हैं. Then वो जर्मन सीखता है. He learns German. Er Ja, lernt Deutsch. वो जर्मन सीखती है. She learns German. Sie sie lernt. lernt Deutsch. अली जर्मन सीखता है. अली Ali lernt Deutsch. lernt Deutsch. हुमैरा जर्मन सीखती है. हुमैरा Lernt Deutsch. lernt मेरा Deutsch. लैंड Deutsch. हुमैरा. पता चल गया मुझे वीवो आप हुमैरा ही हैं.
अपना नाम वो कर ले, रीनेम कर ले, ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। ओके very गुड। धन जी, ये कौन सा वाला जी है? यू दे यू। यू दे वाला जी भी हो सकता है, उसके साथ भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा। और क्या होगा रूल? ए एन जी लर्नन। आप जर्मन सीखते हैं, जी लर्नन डॉइच। वो लोग जर्मन सीखते हैं, दे लर्न जर्मन, जी लर्नन डॉइच। बाइट इज इंग्लिश, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दानियाल और हमजा जर्मन सीखते हैं, दानियाल und Hamza lernen Deutsch lernen Deutsch einfach। तुम लोग जर्मन सीखते हो, इहा इहा learned lernt Deutsch। तुम लोग जर्मन सीखते हो। klar, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। कोई इशू तो नहीं है? sehr gut, dann lernen। lernen ist ein regelmäßige Verb, ये एक रेगुलर वर्ब है। und haben wir eben gesehen, अभी बिल्कुल अभी हमने देखा। wie man lernen conjugiert, lernen को कैसे conjugate किया जाएगा? ओके, conjugieren wir zusammen, मिलकर इसको conjugate करते हैं। ich ich Lerne. lerne lerne, du learn du Lernst. lernst du lernst, sehr gut, sie Lernen. sie lernen, sie lernen sie es learned lernt lernt, sehr gut, wir learn Lernen. wir lernen lernen lernen, हम सीखते हैं। इहा learn Lernt. wir lernt lernt und sie learn Lernt. sie Lernen. lernen, lernen sehr gut। Klar, क्लियर है सबको? जी yes सर। sir was haben Sie bemerkt? आपने क्या नोटिस किया इसमें? क्या नोटिस किया आपने? कुछ तो नोटिस किया। इसकी एंडिंग चेंज हुई है, स्टेम वर्ब स्टेम सेम रहा है। Verbstamm bleibt gleich, जो वर्ब की स्टेम है वो सेम रही। Was haben wir geändert? सिर्फ हमने क्या चेंज किया? एंडिंग। Ich lerne, du lernst, sie lernen, er sie es lernt, wir lernen, ihr lernt und sie lernen। Klar? समझ आए सबके? जी सर। ऐसे yes वर्ब्स sir को क्या कहा जाता है? रेगुलर 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 वर्ब्स। वर्ब्स। sehr gut, याद रखिएगा। regelmäßig Dann auf dieser Seite haben wir auch ein Verb und das heißt spielen। इस वर्ब को कहा जाता है spielen und bedeutet to play, यानी खेलना, खेलना। Dieses Verb ist auch ein regelmäßiger Verb। ये वर्ब भी एक रेगुलर वर्ब है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये रेगुलर वर्ब है तो इसका हमें क्या फायदा? हमें क्या फायदा? सर इसकी स्टेम सेम रहेगी और हमें जो है वो सिर्फ एंडिंग चेंज करनी है। Sehr gut। The verb stem will remain the same। इस वर्ब की स्टेम सेम रहेगी while we conjugate the verb, जब हम इस वर्ब को conjugate कर रहे होंगे। We change only the ending of the verb। हम सिर्फ इस वर्ब की एंडिंग को चेंज करेंगे during conjugation, conjugation के दौरान। Zum Beispiel, for example, schreibe ich hier, मैं यहाँ लिखता हूँ सारी वर्ब स्टेम एक साथ लिख देता हूँ। इस वर्ब में स्टेम क्या है? इस वर्ब में स्टेम क्या है? स्पेल Spiel Spiel, sehr gut, SPIEL Spiel, 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 ओके, सब में Spiel रहेगा। मैं खेल रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ich ich spiele spiele क्रिकेट, Cricket तुम क्रिकेट खेलते हो। du du Spielst. spielst spielst क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। sie Spielen. spielen spielen क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है।
He plays Spielt. cricket. Spiel. Er spielt. Er spielt. वो क्रिकेट Spielt. खेलती है. Spiel. Sie Sie, spielt Sie sie spielt. spielt Cricket. Cricket. नशित क्रिकेट खेलता है. Nashid is spielt. नशित Nashid spielt. spielt cricket. हमजा और अली क्रिकेट खेलते हैं. हमजा Hamza und Ali Ali spielen spielen. spielen Cricket. Sehr gut. Cricket. हम लोग क्रिकेट खेलते हैं. Wir. wir Wir spielen spielen. Wir spielen. Wir spielen. Wir spielen Cricket. तुम लोग क्रिकेट खेलते हो. ihr spielt Wir spielt. Ihr spielt. Er spielt. 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 Klar. Yes, sir. Yes, sir. Sehr gut. Hamza, Daniel, Mirza, Maryam, alles klar. Ahmad, Javeria, Humaira, Yes, sir. Dua, Zehra, Ali Farooq, Yasir, Bilal, Yes, Fiza, sir. Nihal, alles klar. Yes, Ali sir. Nawaz, Yes, sir. Nasheed, Alles Rao, klar. Ibrahim. Okay, sehr gut. Wohnen. Das Verb heißt wohnen. इस verb को कहा जाता है wohnen und bedeutet और इसका मतलब है to live यानी रहना. Und dieses Verb ist auch ein regelmäßiges Verb. This verb is also a regular verb. ये भी एक regular verb है. इसका क्या मतलब हुआ? We change only the ending Ending. of the verb. Zum Beispiel, मैं बर्लिन में रहता हूँ. Ich wohne in Berlin. Wohnen in तुम हैम्बर्ग में रहते हो. Du wohnst 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 in Hamburg. 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 Du wohnst in Hamburg. आप कराची में रहते हैं. Sie wohnen Wohnen. in Karachi. Wohnen in Karachi. वो जर्मनी में रहता है. He lives in Yeah. Germany. Er He Er wohnt 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 in in Deutschland. 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 वो पाकिस्तान में रहती है. Sie Sie wohnt wohnt in in Pakistan. Pakistan. मिर्जा अली बर्लिन में रहता है. मिर्जा अली Mirza Ali wohnt in wohnt Berlin. found in Berlin. in Berlin. दानियाल और हमजा बर्लिन में रहते हैं. दानियाल Daniel und Sie Hamza wohnen in Berlin. दानियाल und हमजा wohnen oder sie wohnen. wohnen. बिल्कुल. they sie means they वो लोग. Sehr gut. हम लोग जर्मनी में रहते हैं. Wir 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 wohnen Wir wohnen in wohnen Deutschland. in in Deutschland. Deutschland. तुम लोग जर्मनी में रहते हो. Ihr wohnt Ihr in wohnt Deutschland. in Deutschland. Sehr gut. We change only the ending of the verb. हमने सिर्फ क्या change किया? Verb की ending को. The verb stem remains the same. Verb की जो stem है वो same रही. Unchanged. Klar. ऐसे verbs को क्या कहा जाता है? Diese Verben heißen regelmäßige Verben, यानी regular verbs. Arbeiten, pronounce with me, arbeiten. Arbeiten. Arbeit. Arbeiten. Arbeit. Arbeiten Arbeiten. means to work, काम करना. Arbeiten. काम करना. To work. काम. Is this heißt infinitive oder conjugated verb? ये infinitive verb है या conjugated verb है? Infinitive. Infinitive. वाओ, क्यों? Sorry. क्यों infinitive है? Ending en. Sehr En gut. last पे original Sehr form. And this is a regular verb. Das ist ein regelmäßiges Verb. इसका हमें क्या फायदा? अगर ये regular verb है. इसकी ending Stem is Only ending unchanged. change करनी. We change only the ending of this verb. हम सिर्फ इस verb की ending को change करेंगे. The verb stem remains the same. Verb की stem same रहेगी. Arbeiten means to work, काम करना. मैं काम करता हूँ. Ich Arbeiten.
Ich Ich arbeite, arbeite. तुम काम करते हो. Du Arbeit. arbeitest. Arbeitest. Du arbeitest. ओके, du arbeitest. यूजुअली जो इस वर्ब की स्टेम है वो सिर्फ कहाँ तक होती है, टी तक ना. Yes. लेकिन और डू के साथ क्या आता है, एस टी. तो अगर मैं Yes. इस टी के बाद फौरन से एस टी लगा देता तो आपके लिए इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल होता. इसको कैसे प्रोनाउंस करते, मुश्किल हो जाता ना. Yes. इसीलिए एस और टी से पहले एक ई लगा दिया गया ताकि इसको प्रोनाउंस करना आसान रहे. Du arbeitest. Artist. Klar, du arbeitest. Dann Sie Arbeiten. arbeiten. आप काम करते हैं. Sie Arbeiten. arbeiten. Arbeiter. वो काम करता है. He works. Er 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 arbeitet. 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 ET. अगर मैं इसके साथ सिर्फ टी लगा दूं जो कि थर्ड पर्सन में लगता है तो अजीब सा हो जाएगा, ये प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा. इसीलिए ई और टी. Eat. arbeitet वो काम करता है. Er arbeitet वो काम करती है. Sie Arbeitet. arbeitet. अहमद काम करता है. अहमद Arbeitet. 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 जवेरिया काम करती है. जवेरिया Arbeitet. arbeitet. इब्राहिम और दानियाल काम करते हैं. Ibrahim und I. इब्राहिम और Ibrahim दानियाल Und Daniel arbeiten. 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 Sehr gut, arbeiten. हम काम करते हैं. Wir Arbeiten. Arbeiter. arbeiten. Wir Arbeiten. arbeiten. तुम लोग काम करते हो. Ja, arbeitet. Ihr Ihr arbeitet. Arbeit. ihr Arbeitet. arbeitet. Sehr gut. Klar, kläre हैं यहाँ तक सबको. Yes, sir. Yes, sir. Sehr gut. Dann Fragen. Fragen ist auch ein Verb. Und das heißt to ask, यानी पूछना. Yes, sir. पूछना. Ich frage, मैं पूछता हूँ. Ich frage, मैं पूछता हूँ. To ask something, पूछना. Und das ist auch ein regelmäßiger Verb. This is also a regular verb. Wie man Fragen konjugiert. कैसे Fragen को conjugate किया जाएगा? Ich Frage. 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 Sehr gut. Du Fragest. Fragst. fragst. Sehr gut. Sie Fragen. 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 Er, sie, es Frag. Frag. fragt. Sehr gut. Wir Fragen. 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 Sehr gut. Ihr Frag. Frag. fragt. Sehr gut. Dann sie Frage. fragen. Sie कौन सा है? De. 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 ये वाला. और ये जी कौन सा है? She. She. और ये जी कौन सा है? You वाला. Formal You. You. Formal. Sehr gut. Klar. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Dann. Fragen means पूछना. Du fragst etwas. तुम कुछ पूछते हो. Ich sage dir. मैं तुम्हें बताता हूँ. Ich sage. Sagen means बताना. To say something. To tell something. To tell. To say. बताना. Sagen. Sagen. Ich Sagen. sage. Sage. Ich sage. मैं बताता हूँ. मैं बोलता हूँ. Du Sagst. sagst. Sie Sagen. 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 आप बताते हैं. Er Sagt. sagt. Wir Sagen. 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 Ihr Sagt.
sagt und sie Sagen. sagen einfach. इसमें क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल है अभी तक? No, sir. No, sir. Sehr gut. Dann kaufen. Kaufen. Und außerdem mean Kaufen. 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 Kaufen means to buy something, कुछ खरीदना. To buy something. मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ. Ich Kaufen Auto. Ich kaufe kaufen kaufe. oder kaufe? Kaffee. Kaufe, sehr gut. Ich kaufe Ich kaufe ein Auto. ein Auto. Ein Ich kaufe ein Auto. मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ. मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ. मैं गाड़ी खरीदता हूँ. मैं गाड़ी खरीदूंगा. इन सब जुमलों के लिए एक ही जुमला है. Ich kaufe ein Auto. सिंपल. Yes, sir. इससे आसान जबान कहाँ मिलेगी? Ich kaufe. आगे पता चलेगा ना। नहीं नहीं, आगे भी आसान. Ich kaufe ein Auto. Ich kaufe ein Auto. मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ. तुम गाड़ी खरीद रहे हो. Du Du kaufst kaufst eine. ein Auto. Sie Sie kaufen Kaufen. ein Auto. ein Auto. आप गाड़ी खरीद रहे हैं. वो गाड़ी खरीद रहा है. Er Er Kauf. kauft ein Auto. kauft ein Auto. दानियाल गाड़ी खरीद रहा है. दानियाल Daniel kauft Kauft. ein Auto. ein Auto। ein Auto. दानियाल और अहमद गाड़ी खरीद रहे हैं. Daniel und Ahmed kaufen Kaufen. ein Auto. kaufen ein Auto. हम गाड़ी खरीद रहे हैं. Wir 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 kaufen kaufen ein Auto. kaufen ein Auto. तुम लोग गाड़ी खरीद रहे हो. Ihr Ihr kauft Ein ein Auto. kauft ein Auto. Sehr gut. Done. I hope कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा ना. यहाँ तक सब क्लियर है. रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? Was sind regelmäßige Verben? Was ist ein Infinitivverb? Was ist Konjugation? Conjugation क्या होती है? Wie man das Verb conjugate? कैसे किसी भी वर्ब को conjugate किया जाता है? किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी एंडिंग इस्तेमाल की जाती है? आई होप कि इन सब चीज़ों में कोई मुश्किल नहीं होगी. क्लार? हमजा, Klar. मिस नुसरत, Yes, हुमेरा, sir. जवेरिया, अहमद, इकरा शेख, दुआ, फिजा, नशीद, राव इब्राहिम, alles klar? Daniel. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann, auf dieser Seite haben wir ein Verb, एक verb है, und das heißt lesen. उस verb का Lesen. क्या मतलब है? To read. Das bedeutet to read. Lesen means to read. Read. पढ़ना. Lesen. Ist das ein Infinitiv oder conjugates Verb? Infinitive। Infinitiv, warum? EN लगा हुआ है. en. ये जो en है ये क्या है? ending of the word। Ending of the verb. इस verb की ending है और इस verb की stem क्या है? les। This is verb stem. To read, पढ़ना. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. Ich lese. Ich lese. lese। Lese. Ich lese Buch. ein Buch. मैं किताब Ein पढ़ रहा Buch। हूँ. Einfach. तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि वर्ब की जो स्टेम है वो क्या है? les और एंडिंग क्या है? ए. E. ए। मैं किताब पढ़ रहा हूँ. Ich lese Ein Buch. ein Buch. तुम किताब पढ़ रहे हो. Du Like, liest. Du liest ein Buch. Du ये liest क्या हो ein गया? Buch. इसमें लेजन. स्टेम चेंज हो गई सर। लेजन था तो लेजन के हिसाब से सिर्फ एंडिंग को चेंज होना था. less होना Yes, था. sir। ये जो वर्ब स्टेम है ये कैसे चेंज हो गई? वर्ब स्टेम भी चेंज हो गई. क्यों वर्ब स्टेम की चेंज हो गई? These types of Sir? verbs are called irregular verbs. Irregular। Unregelmäßige Verben. Und außerdem unregelmäßige Verben. यानी irregular verbs. Mäßige Verb. When we conjugate the verb, जब भी हम किसी वर्ब को conjugate करते हैं,
द स्टेम ऑफ द वर्ब ऑफन चेंजेस, उस वर्ब की स्टेम भी चेंज हो जाती है। एंड दीज वर्ब्स आर कॉल्ड irregular verbs. Irregular. Diese Verben heißen unregelmäßige Verben. इन verbs को कहा जाता है unregelmäßige Verben यानी irregular verbs. Unregular. Irregular verbs do not follow a consistent pattern while conjugation. ये जो verbs होते हैं वो उस consistent pattern को follow नहीं करते जो हमने सीखा। ये verbs कुछ अलग ही होते हैं। इन verbs की stem भी change हो जाती है with the ending के साथ साथ। लेकिन एक आसान बात ये आपके लिए कि जो वर्ब की एंडिंग है वो वैसे ही चेंज होती है जैसा हमने सीखा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन द रूल, उस रूल में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सिर्फ वर्ब की स्टेम चेंज हो जाएगी। zum Beispiel sehen, pronouncing me sehen, जी sehen Zain. means to टू see यानी देखना। देखना। sehen, मैं देख रहा हूँ। ich sehe, तुम देख रहे हो। du siehst, pronouncing me du siehst, तुम Oziest. देख रहे हो। er Easiest. sieht, ये सीट er sieht, वो देख रहा है। These verbs are called irregular verbs, unregelmäßige Verben. Klar? यस सर Sehr gut. Dann schauen wir ein paar unregelmäßige Verben. कुछ irregular verbs को देखते हैं। Zum Beispiel sehen. Sehen means देख सी देखना. to see, देखना। Ich sehe. से है इससे है Ich sehe, मैं देख रहा हूँ। Ich sehe dich, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। Ich sehe einen Film, मैं फिल्म देख रहा हूँ। Ich sehe Fußball spielen, मैं फुटबॉल मैच देख रहा हूँ। Sehe means देख रहा हूँ। Du siehst, pronouncing me du टू जीस्ट siehst, du siehst। Sie, sie sehen sehen, sie sehen, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। चीजें हैं Sie sehen, वो देख रहा है। Er हेयर sieht, pronouncing me er sieht, Yazid. वो देख रहा है। यस हम देख रहे हैं। Wir, yazin जिहिन wir sehen sehen, तुम लोग देख रहे हो। Ihr हेयर sie hazin seht, ये ihr seht, वो लोग देख रहे हैं। They Sie sehen. sehen, sehr gut, sehen। तो आपने देखा कि जो irregular verbs हैं उनमें एक फर्क आपको दिखा, और वो फर्क क्या था कि एंडिंग के साथ साथ वर्ब स्टेम भी चेंज हो रही है। लेकिन ये वर्ब स्टेम हर सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होती। कुछ सब्जेक्ट हैं ऐसे जिनके साथ ये वर्ब स्टेम चेंज होती है, और वो सब्जेक्ट सिर्फ दो हैं अगर आप गौर करें। डू Yes, है sir. और दूसरा Do ही और शी और और इट है he. जैकूट, सिर्फ ये दो हैं, सिर्फ ये दो हैं, सब और में ऐसे ही है सर सब में ऐसे ही है। ओके, तो सिर्फ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक सेकंड पर्सन इनफॉर्मल यानी तुम, दू, और एक थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं मूवी देख रहा हूँ। इश जेहे देन फिल्म, तुम मूवी देख रहे हो। दू जीस्ट Sie ist. देन फिल्म, आप मूवी देख रहे हैं। जी sie जेन sehen देन फिल्म, den वो मूवी देख रहा है।
या Ja, sehr, Jeez. Seat. Yes, sir. Jeez. जीट? जीट Seat. Zeet. देन फिल्म। हम मूवी देख रहे हैं विया Zehn. Ja, Sehen. Sehen. जेन। Und Film. तुम लोग मूवी देख रहे हो ईहा Zehn. That. जेड। Zed. और आ, वो लोग मूवी देख रहे हैं जी They Zed. जेन। Sie sehen. निहाल मूवी देख रहा है निहाल जी Zed. Date. Seat. थर्ड पर्सन सिंगुलर याद है भूल गए Yes, sir. थर्ड पर्सन सिंगुलर निहाल और यासिर मूवी देख रहे हैं Sie sehen. Sehen. Film. निहाल und यासिर जेहन देन Yeah, फिल्म yes, sir. ओके हाँ मिर्जा अली has नफाग कोई क्वेश्चन सर ये ई की जगह जो आई ई आ रहा है दो और उसमें इजी इसमें तो ये कोई कॉम्बिनेशन है या मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ई की जगह आई ई आएगा या सिर्फ आई ही आएगा या कुछ और भी आ सकता है? नहीं हाँ इरेगुलर वर्ब्स जी की स्टेम को चेंज करने का कोई रूल नहीं है ये वर्ब्स ओके आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे ओके तो ओके कोशिश सर हमारी हमेशा सर यही इनकी रहेगी इरेगुलर वर्ब की कोई पहचान भी है सर? नहीं अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई पहचान नहीं है आप किसी वर्ब को देखकर नहीं पहचान सकते कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है ये वर्ब्स आपको याद करने होंगे और जर्मन जबान में बहुत ज्यादा वर्ब्स ऐसे नहीं है 10% या वो 10% वर्ब्स इरेगुलर होते हैं 90% वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स बहुत थोड़े से वर्ब्स ऐसे हैं जो इरेगुलर होते हैं ओके तो आई होप कि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी और सर ये ज्यादातर स्टेम चेंज करने का कोई फार्मूला भी नहीं है? कोई फार्मूला नहीं हर वर्ब हर इरेगुलर वर्ब अपने हिसाब से चेंज होता है अपने हिसाब से ओके सर ओके ओनली होता ये दो सब्जेक्ट के साथ ही है? बिल्कुल लेकिन होता ये सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के साथ है डू के साथ और ही थर्ड पर्सन शीट सिंगुलर और के थर्ड साथ पर्सन। मिस नुसरत हाजुन आगे कोई क्वेश्चन जी सर, मैं कह रही थी कि 90% जो है वो रेगुलर वर्ब्स हैं और 10% इरेगुलर है। हाँ तो क्या ऐसा हो सकता है वो 10% की लिस्ट हमें मिल जाए, हम हाँ याद देखें कर लें? वही बात कि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ कन्वर्जेशन में कभी इस्तेमाल ही नहीं करते तो जैसे एक साथ किसी चीज़ को वोकैबलरी को याद करना ये सही प्रैक्टिस नहीं होती ना वो आपको याद रहते हैं तो जैसे जैसे हम कोर्स में प्रोग्रेस करते रहेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम तो वैसे वैसे आप लोग इन चीज़ों से फैमिलियर होते रहेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल हैव अ सफिशिएंट वोकैबलरी और आप देखेंगे कि आपको अलग से उस वोकैबलरी को याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आई हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों की कि वो चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी ओके तो फिर भी मैं उन वर्ब्स की लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर लेकिन कोशिश किया करें कि किसी भी वोकैब को चाहे वो वर्ब्स हो या नाउन हो ऐसे याद ना करें बल्कि उसको उसकी प्रैक्टिस करें उसको इस्तेमाल करें डेली लाइफ कन्वर्सेशन में ओके जय गुड जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे चलेंगे तो मैं आपको बताता भी रहूँगा कि ये वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है और हम उसकी कॉन्जुगेशंस भी देख लिया करेंगे ला जय गुड आई होप कि जेहन में कोई मुश्किल नहीं होगी मैं देख रहा हूँ मैं फिल्म देख रहा हूँ इश जे आइनन फिल्म तुम फिल्म देख रहे हो du siehst ईस्ट। einen Film आप फिल्म देख रहे हैं Sie sehen einen Film वो फिल्म देख रहा है er sieht einen Film निहाल फिल्म देख रहा है निहाल sieht einen Film हम फिल्म देख रहे हैं wir sehen einen Film आइनन तुम लोग फिल्म देख रहे हो ihr seht जी। einen Film वो लोग फिल्म देख रहे हैं Sie sehen
einen Film. Klar? Sehr gut. Dann kommen wir auf andere. दूसरे वर्ग के ऊपर चलते हैं. Essen. Was bedeutet Essen? Essen means to eat, खाना. और आपको ये सुन के बड़ा दुख होगा कि Essen ist auch ein unregelmäßige Verb. Essen भी एक irregular verb है. ये सर दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं. Essen means to eat, खाना. मैं बिरयानी खा रहा हूँ. Ich esse ऐसे बिरयानी. Ich esse बिरयानी. तुम बिरयानी खा रहे हो. तुम. Du isst. टाइम भी चेंज हो Du isst बिरयानी. याद आया? Du isst बिरयानी. यस सर तुम बिरयानी खा रहे हो. Klar, आप बिरयानी खा रहे हैं. Sie एसन essen. Essen. वो बिरयानी खा रहा है. Er ईस्ट isst. Sehr gut. Er isst बिरयानी. हम बिरयानी खा रहे हैं. Wir Essen. एसन essen बिरयानी. तुम लोग बिरयानी खा रहे हो. Ist. Est oder ist? Est. Est. वो लोग बिरयानी खा रहे हैं. Essen. जी एसन Essen. Sie Sie essen. essen. बिरयानी का नाम सुन के पानी आने लगता है मुंह में सबके ना. ओके. Dann was haben Sie bemerkt? क्या नोटिस किया आपने जर्मनी इसमें? वालों पे ज्यादा आता है. बिल्कुल ऐसे ही. सीख लो जल्दी जल्दी सब. क्या नोटिस किया इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशंस में आपने? सर इसमें शुरू में इस Do ई की और जगह एस आ रहा है. Do और एर्थ यस के साथ ist. स्टेम जो चेंज हुई वो सिर्फ और सिर्फ दो जगह हुई. ओके सर. इश ऐसे मैं खा रहा हूँ या मैं खाता हूँ या मैं खाऊंगा जो भी. Du isst तुम खा रहे हो या तुम Yes. खाते हो. Sie essen आप खाते हैं. Er sie es वो खाता है वो खाती है. अली बिरयानी खा रहा है. अली Ali ist. isst बिरयानी. Yeah. हम खा रहे हैं. Wir essen. तुम लोग खा रहे हो. Ihr esst एस्ट Ihr esst. आप या वो लोग खा रहे हैं. Sie essen. Klar? Sehr gut. तो ये जो एंडिंग है वो सेम रहेगी जो एंडिंग्स हमने देखी थी. इश के साथ एंडिंग क्या रहेगी? हमेशा ए. दू के साथ एस एस्ट थे. जी के साथ ए एन. ए उसके साथ थे. विया के साथ ए एन. ईहा के साथ थे. जी के साथ ए एन. इसमें जो सर डबल एस आपको दिख रहा है डबल एस ये डबल एस एक्चुअली एस एन वाला ही है क्योंकि एस एन में डबल एस आता है ना. इसीलिए ये यस डबल सर एस हमने हर जगह लगाया. इसमें भी डबल एस इसमें भी डबल एस इसमें भी डबल एस हर जगह डबल एस. लेकिन अब आप सोचेंगे सब में डबल एस लग गया. अगर मैं दू के साथ भी डबल एस का यूज करता तो उसमें इसकी एंडिंग क्या होती है? दू की एस थे तो उसमें तीन एस आ जाते. तीन एस आ जाते इसीलिए हमने उसमें एक एस या ऐसा समझ लें कि इसका अपना एस लगा हुआ है. हमने इसमें सिर्फ टी लगा दिया. इसमें इसका अपना एस ऑलरेडी लगा हुआ है. इसका अपना एस है. जो दो एस आपको दिख रहे हैं वो एस एन के अपने हैं. हमने उसमें सिर्फ टी की एडिशन कर दी दू के साथ क्योंकि हम एक एडिशनल एस नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो तीन एस हो जाते. क्ला किसी का कोई क्वेश्चन है? निहाल. यस सर. सर जैसे इसके अंदर हमने एआई के साथ भी एस लगा है तो नॉर्मली अगर हम लोग कोई किसी को कुछ बोल रहे होते हैं
तो हम लोग वैसे भी तो IST वाला इस भी तो यूज करते हैं, तो वो वो अलग बोलने है। में बड़ा मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल, बोलने में तो सेम है दोनों, बोलने में दोनों सेम है, लेकिन वही बात कि आपकी सिचुएशन पे वेरी करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, वो सामने वाला समझ जाता है। ओके। ओके सर। वो जो इस्ट है सिंगल एस वाला, वो क्या है एक्चुअली, कौन बताएगा? जाइन की फॉर्म है, भूल गए सब। जाइन यस की सर। फॉर्म है। यस सर। एया इस्ट नेहाल, ही इज नेहाल, वो नेहाल है। आइडेंटिटी शो करता है। नेहाल इस्ट म्यूडे, नेहाल थका हुआ है। कंडीशन क्ला, तो वो इस्ट अलग है और खाने वाला इस्ट अलग है। Verstehen Sie? यस सर। Okay, sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं। Sprechen. Sprechen. Expression. Sprechen means to speak, बोलना। बोलना, to speak। मैं जर्मन बोलता हूँ। Ich Sprache. spreche. Spreche. Spreche सर। Spreche. Ich spreche. शीन से स्प्रिशमान से एच में चीन आउस, सी एच को हमेशा शीन शीन से से। प्रोनाउंस किया जाएगा। स्प्रेशन। Spreche. स्प्रेशन। Expression. Warum spricht man das mit Schien aus? इसको शीन से क्यों प्रोनाउंस किया जाएगा? क्या रूल है? क्या वजह है? कौन बताएगा? wer möchte antworten? इसलिए कि CS से पहले ई आ रहा है। Sehr gut. CH से पहले अगर E हो, Iho. I हो umlaut, ओ, हे umlaut या U umlaut, इन सब सिचुएशन में CH को हमेशा शीन से प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके, इस चीज का ख्याल रखिएगा। Sprechen means to speak, बोलना। मैं जर्मन बोलता हूँ। Ich spreche Spreche Deutsch. Deutsch। तुम जर्मन बोलते हो। Du Du sprichst, 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 sprichst Deutsch। तुम जर्मन बोलते हो। Sie Sie sprechen einfach। Sie sprechen sprechen, Deutsch। sprechen. आप जर्मन बोलते हैं। वो जर्मन बोलता है। Er Er spricht Deutsch। spricht, हम जर्मन बोलते हैं। Wir Sprechen. wir sprechen. sprechen wir sprechen Deutsch। तुम लोग जर्मन बोलते हो। तुम लोग Er इहा spricht. स्पृश नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि इररेगुलर वर्ब्स में जो वर्ब स्टेम चेंज होती है वो सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के दो साथ होती है ना, वर्ड। सिर्फ दो के यस सर। साथ होती है। जी सर। इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब स्टेम चेंज नहीं होगी। क्ला यस सर। ओके। उन वो लोग जर्मन बोलते हैं। जी Sprechen. स्प्रेशन। Sprechen. इब्राहिम जर्मन बोलता है। इब्राहिम Spricht स्प्रिश्ट डॉइच। Deutsch. इब्राहिम और अहमद जर्मन बोलते हैं। Ibrahim und Ahmed sprechen Deutsch. स्प्रेशन डॉइच। sehr gut, sehr gut। क्ला क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, sehr gut। Dann gehen wir weiter। आगे चलते हैं। Laufen, was bedeutet laufen? Laufen means To run. to run, दौड़ना या भागना। Ich laufe, मैं भाग रहा हूँ। Ich laufe schnell, मैं तेज भागता हूँ। Ich laufe schnell, schnell pronounce with me, schnell। Schnell Schnell. means fast या तेज। Schnell, Schnell. laufen, ich laufe schnell, pronounce with me, laufe। Laufe. Laufe. Ich laufe schnell, मैं तेज भागता हूँ। तुम तेज भागते हो। Du Du laufst. लास्ट
Du, लास्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इरेगुलर वर्ब है, ये डू के साथ चेंज क्यों नहीं हुआ, यही सोच रहे होंगे यस आप। सर, यही सोच रहे हैं सर। कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ चेंज, ये ले कर दिया। तो लॉइफ्स्ट, umlaut, प्रोनाउंस इट मी लॉइफ्स्ट। lost, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, आ umlaut und u का, schreibe ich hier ganz oben, मैं ऊपर लिखता हूँ बिल्कुल, आ umlaut und u, ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को प्रोनाउंस किया जाता है ऐसे, ओए, प्रोनाउंस इट मी ओए, oil, ओए। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, लॉइस्ट, lost, लॉइस्ट, sehr gut, läufst, klar, läufst, dann sie, sie laufen, 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 sehr gut, er, sie, es, läuft, läuft, sehr gut, läuft, 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 इसमें भी läuft होगा, ओके। und wir, हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, we are running, wir laufen, wir laufen einfach, wir laufen, तुम लोग भाग रहे हो, ihr ihr lauft, lauft, वो लोग भाग रहे हैं, sie laufen, laufen, klar, समझ आए सबके। मैं भागता हूँ, ich laufe, तुम भागते हो, du läufst, बिलाल भागता है, बिलाल, बिलाल läuft, बिलाल तेज भागता है, बिलाल läuft schnell, बिलाल और यासिर तेज भागते हैं, बिलाल und यासिर laufen oder laufen, 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 sehr gut, laufen, klar, क्लियर है यहाँ तक, समझ आया सबको। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, das braucht viel Übung ना, when you practice this then it will become easy for you, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरू शुरू में सब मुश्किल लगता है, लेकिन समझ आना जरूरी है। Verstehen Sie? Sehr gut. Dann fahren. Was bedeutet fahren? Fahren ist auch ein unregelmäßiger Verb. Fahren means to fahren, drive, चलाना या गाड़ी में बैठकर कहीं जाना। I'm driving to Berlin. I'm driving to Berlin. मैं बर्लिन जा रहा हूँ। Ich fahre nach Berlin. मैं बर्लिन जा रहा हूँ। या मैं गाड़ी चला रहा हूँ। Ich fahre das Auto. ein Auto, Ich fahre ein Auto oder ich fahre das Auto. मैं गाड़ी चला रहा हूँ। Ich fahre. ich fahre, Ich fahre. Ich fahre. Du fast, fast. अगर ये fast हो जाएगा तो ये किस काम का रेगुलर वर्ब, खुद ही सर बताओ। एक के ऊपर umlaut आएगा। Sehr gut. एक के ऊपर umlaut. Du fährst. Fährst. Pronounce it me. Du fährst. fährst fährst, Fährst. du fährst, Ich fahre das Auto. मैं गाड़ी चला रहा हूँ। Du fährst das Auto. तुम गाड़ी चला रहे हो। Du fährst nach Berlin. You are driving to Berlin. तुम बर्लिन जा रहे हो। Du fährst. Klar? yes sir Sie. Sie fahren, fahren. Sehr fahren gut. Fahren नहीं fahren. Okay, fahren fahren. वो गाड़ी चला रहा है। Er fahrt fährt, fahrt oder fährt. fährt, Fährt. Sehr gut. fährt, क्या रूल बताया था?
Do और एनर्जी डू एस के के साथ। साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब स्टेम चेंज होगी। यही तो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। विया, हम गाड़ी चला रहे हैं। विया fahren, विया Wir फागन। fahren. sehr gut, विया फागन। तुम लोग गाड़ी चला रहे हो। इहा ihr fahrt, फार्ट। sehr gut, वो लोग गाड़ी चला रहे हैं। Sie fahren fahren, जी फागन। das Auto. मैं बर्लिन जा रहा हूँ। इश फागे नाख बर्लिन। यासिर बर्लिन जा रहा है। यासिर fahre, यासिर Fährt. Fährst. fährt, फैट। यासिर Fährt. फैट थर्ड पर्सन dritte Person Singular थर्ड पर्सन सिंगुलर। Fährt. fährt, यासिर और बिलाल बर्लिन जा रहे हैं। Yasser und Yasser Bilal und Bilal fahren fahren फागन। sehr gut, nach Berlin. nach Berlin। Nach Berlin. यासिर और nach बिलाल गाड़ी चला रहे हैं। यासिर und Bilal Fahren 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 ein Auto. das Auto oder ein Auto। das Auto. sehr gut, verstehen Sie? सर अगर Yes, sir. आपने बोला कि बर्लिन जा रहे हैं कि अंदर ही फाइन यूज होगा, तो ये तो ड्राइव है ना, अगर कोई ट्रेन से जा रहा है तो भी वो फाइन ही बोलेगा। ट्रेन से भी फागन होता है। हिया स्टेट यहाँ लिखा हुआ है, चलाना या जाना। ओके। और सर अगर हम लोग फारात पे जा रहे हैं तो अभी हम लोग ये बोलेंगे इश बिल्कुल फारे 10 फारात। बिल्कुल। ओके। फागाट pronounce with me। फारात। 10 Fahrrad, फा 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 fahr, किसे कहा जाता है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ आसान तरीके से। फा का क्या मतलब है? फा कॉम्टाउस फागन, ये जो फा है ना, ये फागन से ही आया है। फागन का मतलब है चलाना, सही है। और चलाने से हमने उठा लिया फा। देखें, फागन। सही। फागन मीन्स चलाना, इसमें से हम्म, हमने क्या उठा लिया? फा फा उठा लिया। Ah, और एक वर्ड होता है हमारे पास, गार्ड। गार्ड। प्रोनाउंस मी गार्ड। गार्ड गार्ड। कहा जाता है टायर को। साइकिल का टायर होता है ना, उसको गार्ड कहते हैं, Rad. जिसको हम उर्दू में कहते हैं पहिया। हाँ ओके। व्हील को गार्ड कहा जाता है। गाइफिन भी कहते हैं, गार्ड भी कहते हैं। तो Fahrrad. पहिए पे बैठ के अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है? फागार्ड, यानी फार बाईसाइकिल। Fahrrad. Fahrrad, समझ आया? आप कभी नहीं भूलोगे आप लोग। पहिया गार्ड, Yes, sir. फागन मतलब चलाना। पहिया, पहिए पे बैठ के जा रहे हो उसको फागार्ड कहते हैं। 10 फागार्ड बाईसाइकिल को कहा जाता है। Verstehen Sie? Fahrrad. Yes, Sehr sir. gut। Yes. Dann gehen wir weiter, आगे चलते हैं। haben, haben कहाँ से आ गया? Fahrrad. das haben wir eben gesehen, ये तो अभी हमने देखा था पिछले लेसन में। was bedeutet haben? haben का क्या मतलब है? टू हैव। to To have, have. किसी भी चीज का पास होना। and this verb shows the position of any noun, किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इटसेल्फ एक इरेगुलर वर्ब है। हम तो बस मजे से इसकी कॉन्जुगेशन में लगे हुए थे, इसको इस्तेमाल कर रहे थे, याद भी कर लिया हमने। लेकिन आज पता चला ये तो एक इरेगुलर वर्ब है। zum Beispiel I have a car, मेरे पास एक गाड़ी है। ich Habe Ich habe 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 eine, ein Auto. ein Auto. ein Auto, ich habe ein Auto, मेरे पास एक गाड़ी है। तुम्हारे पास एक गाड़ी है। du डू Hast. हाथ। Hast du hast ein Auto, आपके पास एक गाड़ी है। sie Hab. ihr habt sie Haben. sie haben, haben haben sie haben ein Auto। haben. you formal ना, you formal। यस सर। Okay. Sie आप haben आप उसके पास एक गाड़ी है। he has a car। ही हाफ। Ihr habt. ihr hart, sehr Habt. gut। hart, ihr hart, याद आया कुछ? यस सर।
जी सर। इरेगुलर वर्ब, और जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उनकी जो वर्ब स्टैम्प होती है वो डू में और थर्ड पर्सन में सेम रहती है, अगर आपको याद हो। यस सर। Yes, sir. अभी तो हमने हाँ देखा mit wir eben gesehen। देखो इसमें fair, इसमें भी fair, ऊपर वाले में läuft, इसमें भी läuft, इससे ऊपर वाले में sprich, इसमें भी Sprich. sprich। तो do के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी वर्ब स्टेम सेम रहती है। अगर ये फर्क समझ आ गया आपको तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगी। Klar, Yes, verstehen sir. Sie? Sehr gut। Wir, हमारे पास कार है, haben, we have a car। Wir, haben wir haben sehr gut। Wir haben ein Auto। तुम लोगों के पास एक कार है। Ihr Ihr habt habt habt, sehr gut। Ihr habt ein Auto। Sie, haben, haben Sie haben, sehr gut। Sie haben। Verstehen Sie? Klar, समझ आ रहा है सबके? yes sir yes sir, नशीद, नशीद के पास एक गाड़ी है। नशीद, ihr नशीद, hart, Nishit hart habt नशीद नशीद, hart, Ein हार्ट, Auto. ein Auto। नशीद और अहमद के पास एक गाड़ी है। नशीद und hat Ahmed Auto. haben haben ein ein Auto। Auto। Klar, समझ आया सबके? मुश्किल तो नहीं हो गया है? Yes sir, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, आसान है। Yes, sir. ओके, अब sehr yes gut, sir sehr gut। डन। जाइन, ये क्या चक्कर है यार? मतलब जाइन और haben ये दोनों इरेगुलर वर्ब्स हैं। Sein ist auch ein unregelmäßiger Verb। हाँ, Sein is also an irregular verb। ये भी irregular verb है। Was bedeutet sein? Sein का क्या मतलब है? Sein means to be, होना, होना। Ich bin müde, मैं थका हुआ हूँ। Ich bin तलहा, मैं तलहा हूँ। Ich bin Ingenieur, मैं इंजीनियर हूँ। Ich bin Lehrer, मैं टीचर हूँ। होना, identity, condition, state, location। Ich bin zu Hause, मैं घर पर हूँ। Location, ओके। Und wie konjugiert man sein? Sein को कैसे conjugate किया जाएगा? Ich Bin, die bin, sehr gut। Du bist, 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 sie sind, 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 er, seid, ist, 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 sorry, er ist, wir wir sind, sein, sind, so, ihr seid, seid, seid sehr gut। Und sie sind। sind. sind किन किन चीजों के साथ आता है? sie, wir और sie। hm, ओके, आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। हाँ, sind। sind kommt immer mit sie, you वाला ना, sie you वाला। sie kommt mit wir, wir यानी हम। sie kommt mit small z यानी der वाला। klar। und auch mit Plural, Plural के साथ भी आता है। Zum Beispiel Ahmad und Ali, Ahmad und Ali, beide sind Plural, kommen immer mit sind, ये हमेशा sind के साथ आएंगे। अहमद थका हुआ है, अहमद ist müde, अली थका हुआ है, अली ist auch müde, अली भी थका हुआ है। अहमद और अली थके हुए हैं, अहमद und अली sind müde, sind क्यों? क्योंकि अहमद उन अली जिन प्लूरल, ये दोनों प्लूरल हैं और प्लूरल कैटेगरी हमेशा अपने साथ जिन को फॉलो करती है। क्ला, समझ आया सबके? नहीं समझ आया? Yes, sir. राव इब्राहिम, नशिद, हमजा, दानियाल, मिर्जा अली,
मरियम, यूसुफ, हुमैरा, जवेरिया, इकरा, बिलाल, अली फारूक, alles klar, du Zehra. Okay, sehr gut, sehr gut. सर Dann. ये एक सवाल था शायद मुझे समझ में नहीं आया। हाबिन और जीन, ये दोनों आपने बोला Sein. जाइन, सॉरी, ये दोनों आपने बोला इरेगुलर वर्ब्स हैं, राइट? बिल्कुल। तो सर इनके डू और एयर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्या चेंज नहीं हो रहा? जो फर्स्ट पार्ट है, जो वर्ब स्टेम पे, वो चेंज क्यों नहीं हो रही? चेंज क्यों नहीं हो रही निहाल? कौन बताएगा? वेमिस्ट, निहाल या किलियन? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा निहाल को? सर चेंज चेंज हुई है ना, चेंज हो गई है, जय गुड। क्योंकि बी चला गया ना, क्योंकि बी हमारी चला गया। स्टेम, हाँ जी, बी ओके। चला गया। देखो आप, उस बाकी सब में बी है लेकिन उसमें से बी चला गया, इसका मतलब ये है कि चेंज हो गई। यस। खिला निहाल। यस सर। ओके, जय गुड, जय गुड, डन। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। वस इज इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है? ओके जाग मियां मुझे बताएं कि वस इज इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है? जल्दी जल्दी। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब की Original form ओरिजिनल of a फॉर्म। वस इज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना। To change the verb according to the subject. We change the verb or we change the ending of the verb? एंडिंग ऑफ द वर्ब। Ending of the verb is called conjugation. Sehr gut. Ending of the And wie viele Verben haben wir im Deutschen? जर्मन में कितनी तरह के verbs होते हैं? कितनी टाइप्स के verbs होते हैं? 2 टाइप्स। types. टू टू टाइप्स, टाइप्स, कौन कौन two से? types. रेगुलर, इरेगुलर। विकाल, Regular and regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben. Regular verbs or irregular verbs. Sehr gut. Was sind regelmäßige Verben? Regular verbs क्या होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ एंडिंग चेंज होती है, ending और क्या चेंज नहीं subject. होता? वर्ब स्टेम। Verb stem. Verb stem remains the same. Und was sind unregelmäßige Verben? Irregular verbs क्या होते हैं? जिसके अंदर वर्ब स्टेम भी चेंज होता इरेगुलर है। स्टेम भी Ending के चेंज साथ होता है। साथ verb stem भी change होती है. Sehr gut. Okay, dann Übungszeit. Machen wir ein paar Übungen zusammen. मिलकर करते हैं कुछ exercises को. Okay, aber haben wir viele Verben? We have a lot of verbs. Aber लेकिन machen Sie alle Verbkonjugationen zu Hause. इन सब verb conjugations को आप घर से करेंगे. मैं इतना बता देता हूँ आपको कि इनमें से कौन से ऐसे verbs हैं जो irregular हैं, उनके अलावा जो बच गए वो सारे रेगुलर हैं. Zum Beispiel gehen, ये ठीक है, common भी ठीक है. Essen, essen irregular है. इरेगुलर। Trinken भी regular है. Schreiben भी regular है. Machen भी regular. Sehen irregular. Sprechen irregular. Wohnen regular. Haben irregular. Schreiben Sie auch Bedeutungen, okay? You will also write the meaning of the verbs. आपको इन verbs की meaning भी लिखनी होंगी. This is your homework. Fragen, regular. Kaufen, regular. Warten, geben, irregular. Leben, regular. Arbeiten, regular. Zahlen, irregular. Kochen, geben, das haben wir gesehen, ne? Brauchen, regular. Klar? Verstehen Sie? यस सर। Okay, dann Yes. gehen wir. So, वापस चलते हैं. Okay, das lösen wir zusammen. मिलकर करते हैं इसको जल्दी जल्दी. Richtig oder falsch? फॉल्स। Nashid, False. Hamza, Daniel, Fiza, Humaira. False. Falsch, warum? Falsch है तो क्यों falsch है? Sprichst. Sehr gut. Sprichst. Sehr gut. Dann ich mache meine Arbeit. मैं अपना काम कर रहा हूँ.
Richtig. Richtig. Richtig, sehr gut. Arbeit means work यानी काम. Falsch. Falsch, warum falsch? Wir Wir kommen. kommen. Sehr gut, wir kommen. Schreiben, schreiben means to write. Richtig. Richtig, sehr gut. Er schreibt einen Brief. वो खत लिख रहा है. Brief means letter यानी खत. schreiben, schreiben means to write यानी लिखना. Okay, to write. Schreiben. Falsch. Falsch. Falsch, Ich warum trinke. falsch? Ich trinke. Nashid, Hamza, Daniel, Ahmad Yusuf, Nimizi den Ich Teil सब पढ़ trinke. लें. Ich trinke, sehr gut. Sie wohnt. Falsch. Falsch. Falsch oder richtig? Richtig. 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 Richtig, sehr gut. Dann Falsch. falsch, warum? Du gehst. Sehr gut. Du gehst zur Schule. Schule means school. Richtig. Richtig. Warum richtig? Ich Ich esse. esse. Sehr gut. Richtig. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Sehr gut, richtig. Sehen means to To see see. यानी देखना. Tasche. Falsch. Tasche Du means habst. bag. Du habe. Du habe, Hast. sehr gut. Du hast. Du hast. Okay. Dann Richtig. 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 Alles klar? किसी का भी कोई question हो? falls Sie Fragen haben, heben Sie die Hand. Raise your hand. Hamza, Mariam, Ahmad, Humaira, Ali Farooq, Nashid. alles klar? समझ आ रहे सबके? Yes, sir. Alles klar. यासिर, बिलाल, फिजा, नेहाल, Yes, दानियाल. Yes, sir. Okay, sehr gut. Falsch. Falsch. Warum falsch? Du es ist. Sehr gut. Du isst. Das haben wir eben gesehen. ये तो अभी देखा था हमने. ich habe. Richtig. Richtig. Sehr gut. Falsch. Falsch. Warum Ich falsch? wohne. Wohne. Sehr gut. Ihr kommt. Herkommt. Richtig. Sehr gut. Richtig. Richtig. Oder falsch? Falsch. Falsch. Sehr gut. Falsch. Trinken. Trinken. Falsch. Machen. Mach. Machen magst. means to do something, no? To do something. Hausaufgaben. Hausaufgaben means homework. Warum falsch? Du magst. Du Machst. machst. Sehr gut, machst. Falsch. 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 Warum? Schreiben. Wir schreiben. Schreiben, ne? Schreiben. Sehr gut. Richtig. 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 Sprechen. Okay, dann haben wir auch viele Übungen और भी बहुत सारी exercises हैं, aber machen Sie alle Übungen zu Hause. In सब exercises को आप घर से कीजिएगा. Zum Beispiel wir Spielen. spielen. Sehr gut. Ihr Du Wir spielen. spielt. Die Spielt. spielst. Spielst. Ihr Die Spielt. spielt. Er Spielt. Blue one. spielt. Die Junge. Jungen means Spielt. boys. Boy. Na? Boys.
Boys Spielen. Plural. Spielen. 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 Ich Spielen. Spiele. 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 Du Liebst. 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 lieben. Lieben means to love. Du liebst. Liebst. Sehr gut. Die Mädchen. Mädchen means Lieben. girls. Lieben. 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 Sehr gut. Wir Lieben. 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 Ich Liebe. Liebe. sehr gut. Okay, dann wir haben auch viele Übungen. बहुत सारी exercises हैं. Aber machen Sie alle Übungen zu Hause. इन सब exercises को घर से कीजिएगा. Beenden wir heutige Vorlesung. आज के लेसन को यहाँ end करते हैं. Und am Ende, at the end, haben